Welcome students, how are you all? I hope you are watching the videos regularly, and if any doubts are there, I am sure that you are solving that doubts in your live sessions. Okay, so now in our microeconomics हमने अब तक 6 chapters जो हैं we are done with those 6 chapters. Last chapter that we have done was about the cost, and उससे related जो numericals थे that also we have discussed. Today we are going to start the new chapter, okay, and the chapter is about revenue. अब revenue जो chapter है उसमें हम कौन कौन से topics discuss करने वाले हैं. Let's first of all see that, okay, now here are the things that we are going to discuss in our revenue chapter. The first is about the revenue, meaning of revenue. अब revenue का meaning क्या है? In simple terms अगर revenue का meaning समझे तो at the end of the day जितना भी collection आपके पास आया है goods को बेच के, that is the revenue. Then we will discuss about the concepts relating to the revenue. जैसे 5th chapter जो प्रोडक्शन हमने किया था उसमें भी concepts थे. 6th chapter जो cost that we have done उसमें भी concepts relating to the cost we have seen. Similarly here in this chapter the concepts relating to the revenue we are going to discuss. कौन से concepts हैं everyone? See, 3 concepts we have to discuss: total revenue, average revenue and marginal revenue. These are the 3 concepts that we are going to discuss. Then ये जो तीनों concept को discuss करने के बाद total revenue, average revenue and marginal revenue जो हैं, फिर we will understand the relations between them. Total revenue, average revenue and marginal revenue के बीच में relations we will see. Those relations in different markets we are going to see. Now different markets here means what? See, perfect competition एक market है, monopoly है, monopolistic है. Yeah, these are the different forms of market. Okay, so we are going to see in different market forms में ये जो concept हैं वो कैसे related हैं एक दूसरे से. Okay, so here are these things. To perfect competition, monopoly and monopolistic competition में ये कैसे related होते हैं एक दूसरे से. Then we will see the demand curve of all the market in the same diagram. Lastly जो topic हम देखेंगे उसमें सभी market forms के बारे में साथ में हम discuss करेंगे. Okay, so these are the learning objectives that we are going to achieve at the end of the chapter. Okay, again once again ये मैंने 5th chapter में भी कहा था, 6th chapter में भी कहा था. Here also I am saying this thing that if you are clear with the concepts जो concern chapter में हैं तो उससे related जो भी relations हैं that you can easily work on, that you can easily sort out. क्योंकि जो भी relations होते हैं वो concepts को ही आपको explain करना होता है. मान लो अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स टी आर, ए आर एंड एम आर है तो रिलेशन अगर आपको एक्सप्रेस करना है टी आर एंड ए आर के बीच में तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप उसको एक्सप्लेन इजीली कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक विथ द इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ चैप्टर 7 दैट इज रेवेन्यू. अब रेवेन्यू का मतलब क्या है सिंपल टर्म्स में? रेवेन्यू रिफर्स टू the money receipts of the firm. Revenue refers to the receipts of the firm from selling its output. मतलब firm जो output sell करती है उससे जो उनको receipt मिलती है या पैसा जो उनको मिलता है that is revenue. In simple terms it is the proceeds of the firm. Revenue is the proceeds of a firm. सेल्स प्रोसेस मतलब जितना सेल हुआ है उससे जो उनको पैसा मिला है दैट इज रेवेन्यू. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी. सपोज एक प्रोड्यूसर है,
he has produced 1000 tables. Now ये 1000 टेबल सेल करके उसको 20,000 रुपीज़ मिलते हैं, तो सेल्स प्रोसीड्स जो यहाँ पे है उसको हम क्या कहेंगे? 20,000 इज द सेल्स प्रोसीड्स, 20,000 इज द रेवेन्यू। सेल करके जितना पैसा उसके पास आता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ओके, इफ़ यू आर हैविंग अ सिरेमिक यूनिट, तो जितनी भी टाइल्स बेच के, मतलब टाइल्स बेच के जो आपके पास जितना भी पैसा आया है, दैट इज़ द रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू अलग अलग है, डोंट कंपेयर द प्रॉफिट एंड रेवेन्यू टुगेदर। ओके, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे रेवेन्यू मतलब जितना सेल हुआ है उससे जो आपको पैसा मिला है, दैट इज़ रेवेन्यू। The revenue of the firm represents the amount of money received by selling the given output. जो आउटपुट है उसको बेच के जो आपके पास अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव गॉट, दैट इज द रेवेन्यू। नाउ द डिमांड कर्व ऑफ ए कंज्यूमर फॉर ए कमोडिटी इज इन फैक्ट द एवरेज रेवेन्यू कर्व। मार्क द सेंटेंस एवरीवन। कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व है वो यहाँ पे एक्चुअली एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। दैट वी विल सी इन द टॉपिक्स कि ये कैसे होता है, दोनों सेम कैसे हैं। कंज्यूमर का डिमांड कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये दोनों सेम कैसे हैं। द रीज़न इज बिकॉज कंज्यूमर जितना प्राइस पे करता है, ओके, इज द रेवेन्यू ऑफ द फर्म। सिंपल है। वंस अगेन लास्ट लाइन पे फोकस एवरीवन। द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर इज इन फैक्ट द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म, बिकॉज जितना प्राइस कंज्यूमर पे करता है उतना ही तो पैसा फर्म को मिलता है। सो द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म, बिकॉज द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर इज सिमिलर टू द रेवेन्यू विच द फर्म कलेक्ट्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा रेवेन्यू का मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल हमने देखा, एंड द डिमांड कर्व के बारे में एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व, वो दोनों सेम है, उसके बारे में हमने देखा। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। रेवेन्यू एंड द कॉन्सेप्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू, दीज टू आर द सेम। ओके, नाउ रेवेन्यू की डेफिनेशन के बारे में हमने अभी देखा था। ओके, नाउ क्या थी रेवेन्यू की डेफिनेशन, फिर से यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नाउ द डेफिनेशन एवरीवन। अ फर्म सेल्स अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट ए प्राइस एंड ऑब्टेन्स द रेवेन्यू। क्वांटिटी जो आपके पास है वो आप सेल करते हो, एंड जो पैसा आपको मिलता है दैट इज द रेवेन्यू। और आप इसको और दूसरे एक वर्ड भी बता सकते हो इसके लिए, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो होती है रेवेन्यू। अब वो मिलता कैसे है? इट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय द मार्केट प्राइस। ओके, ये कैसे आपको मिलता है? आउटपुट जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो मार्केट प्राइस से, देन यू विल गेट द रेवेन्यू। Okay, it is quantity multiplied by the price of a commodity and the revenue is there. Okay, in the words of Dooley, the revenue of a firm is its sales receipts or money receipts from the sale of a product. मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो उससे जो आपको रिसीट मिलती है या उससे जो आपको पैसा मिलता है, सेल्स रिसीट भी कह सकते हो, मनी रिसीट्स भी कह सकते हो, दैट इज द रेवेन्यू। अब कॉन्सेप्ट्स देखिए, हम यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। दिस 3 कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। टोटल रेवेन्यू, लेट्स स्टार्ट। अब टोटल रेवेन्यू के बारे में, इट इज द अमाउंट अ फर्म रिसीव्स by selling a given quantity of output। जितना आउटपुट आपके पास है वो सेल करके जितना पैसा आपको मिला है
उसको हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल मनी रिसीट ऑफ ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की मनी रिसीट है, या प्रोड्यूसर के पास जितना पैसा आया है उसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। करस्पॉन्डिंग टू द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब वो पैसा उसके पास कैसे आया होगा, बाय सेलिंग द गिवन लेवल, जो उसके पास आउटपुट का है वो बेच के उसके पास जो पैसा आया है, दैट इज द टोटल रेवेन्यू। इट इज एस्टिमेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी एंड द प्राइस, मतलब इन दो चीज़ों को आपको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड द प्राइस। Okay, again in the words of Dooley, everyone, total revenue is the sum of all sales, receipts और income of the firm। टोटल रेवेन्यू मतलब यहाँ जितना भी पैसा उसके पास आया है, इनकम है उसकी सेल्स करके या रिसीट्स से जो भी पैसा आया है, दैट विल बी टर्म्ड एज टोटल रेवेन्यू। और मैथमेटिकली टोटल रेवेन्यू आप कैसे लिख सकते हो, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर सेम, हमने इनिशियली देखा था। एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म एंड डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर आर सेम। अब एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस वो दोनों सेम है। ओके, तो अगर आप प्राइस की जगह पे एवरेज रेवेन्यू लिखते हो देन ऑल्सो इट इज ओके। प्राइस इनटू क्वांटिटी और एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, बोथ आर सेम, because price and average revenue both are same। okay, so total revenue के बारे में आप तीन फॉर्मूलाज जो हैं वो लिख सकते हो, P इंटू क्यू, AR इंटू क्यू एंड समेशन ऑफ ER। वी विल सी टोटल रेवेन्यू तीनों मेथड से या तीनों फॉर्मूला से सेम ही आता है। ओके, अब एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमें कैसे मिलता है, इट इज़ टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू, इज इट। टोटल रेवेन्यू जो है उसको आप क्वांटिटी से डिवाइड करो तो आपको एवरेज रेवेन्यू मिलेगा, एंड वो एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही होता है। ओके, लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल हियर। देखिए, क्वांटिटी सोल्ड लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड प्राइस इज फॉलिंग। मतलब सी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बेचते हो तो प्राइस ऑब्वियसली आपको कम करना पड़ता है। ओके, वी आर टेकिंग हियर एन एग्जांपल। ओके, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन इससे अलग भी हो सकती है। ओके, कि मैं अगर 5 कमोडिटी बेचूंगा तो भी मैं सेम प्राइस रखूंगा, फिर अगर कोई ज़्यादा कमोडिटी खरीदेगा देन आई विल गो फॉर लेसर प्राइस। वी आर टेकिंग दिस एज एन एग्जांपल। ओके, क्वांटिटी सोल्ड हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 एंड प्राइस इज फॉलिंग इफ यू आर परचेजिंग मोर 10 9 8 7 6। अब टोटल रेवेन्यू कैसे मिला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, एंड वी आर गेटिंग हियर टोटल रेवेन्यू। ओके, सो टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है ये। टोटल रेवेन्यू कैसे मिलता है, बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइस विथ द क्वांटिटी यू गेट टोटल रेवेन्यू। ओके, अब एवरेज रेवेन्यू के बारे में। अब देखिए, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी हम कहते हैं, वो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल से भी समझेंगे कि एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस वो दोनों सेम ही आते हैं। ओके, तो हमने वो टेबल में हम देखेंगे एवरेज प्राइस होगा एंड एवरेज रेवेन्यू भी फाइंड करेंगे, बोथ विल बी द सेम। नाउ एवरेज रेवेन्यू के बारे में लेट्स टॉक एंड डिस्कस। इट इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। ओके, सी लिसन, कमोडिटी जो आप सेल करते हो, once again when you sell a commodity, तो पर यूनिट रेवेन्यू कितना होता है उसको हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। अब पर यूनिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टोटल रेवेन्यू हमारे पास आया होता है उसको हम डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के साथ। सी हियर इज द फॉर्मूला। पर यूनिट कितना है रेवेन्यू, मान लो अगर आप 5 कमोडिटीज सेल करते हो एंड आपको 45 रुपीज़ मिलते हैं, 45 रुपीज़ जो है वो टोटल रेवेन्यू है, एंड उसको अगर आप 5 यूनिट्स क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते हो तो आपको 9 आंसर मिलता है, एंड 9 इज़ द एवरेज रेवेन्यू।
तो वो सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे? इट इज पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। अगर आप एक यूनिट सेल करते हो, मतलब जितने भी यूनिट सेल करते हो उसका अगर एवरेज फाइंड करना है तो टोटल रेवेन्यू एंड कितने यूनिट सेल किए हैं उसको आप डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर। और इट इज पर यूनिट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस। इसको आप प्राइस भी कह सकते हो। ओके, इन द वर्ड्स ऑफ हॉलैंड, एवरेज रेवेन्यू इज द रेशियो ऑफ, ये फॉर्मूला ही है, एवरेज रेवेन्यू इज द रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू टू द क्वांटिटी सोल्ड। देखिए, रिमेंबर एवरेज रेवेन्यू इज सेम एज द प्राइस। नाउ इन इकोनॉमिक्स द टर्म एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर द सेम। अब वो कैसे सेम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, पहले प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू हमने साथ में लिखा है। अब एवरेज रेवेन्यू की जगह पे मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया, देखिए TR/Q। ओके, पहले प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये हमें प्रूव करना है। फाइन, प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू ये दोनों सेम है, ये हमें प्रूव करना है। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या है, वो फॉर्मूला लिखी है। ठीक है, देखिए इजी है। ओके, अब एवरेज रेवेन्यू की मैंने फॉर्मूला लिखी है। अब टोटल रेवेन्यू जो ये फॉर्मूला है, देखिए एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू TR/Q। अब TR की जगह पे मैं P/Q लिखता हूँ। ओके, तो क्या आएगा, एवरेज रेवेन्यू की जगह पे मैं लिखता P मल्टीप्लाई बाय Q मैंने लिखा है अपॉन Q। TR की जगह पे P/Q लिखा, तो Q कट हो गया, तो प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू सेम हो गए। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है, इजी है। यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है उसकी जगह पे मैंने P इंटू Q लिखा। ये जो टोटल रेवेन्यू है उसकी जगह पे मैं लिखता हूँ P मल्टीप्लाई बाई Q। तो नीचे Q तो दिया ही हुआ है, तो ये Q है वो कट हो जाता है, बचा क्या, प्राइस। प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर सेम। सिंस द सेलर गेट what the buyer pays, बायर जितना पे करता है उतना ही सेलर को मिलता है। therefore प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर वन एंड द सेम थिंग। ये हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है कि प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर सेम। दैट इज वाई वी कैन से दिस सेंटेंस दैट एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म एंड डिमांड रेवेन्यू कर्व ऑफ द कंज्यूमर आर द सेम। ओके, अब वापस ये देखिए, एक न्यूमेरिकल है, क्वांटिटी अगेन 1 2 3 4 5 क्वांटिटी इज गिवन हियर, दिस इज द क्वांटिटी एंड टोटल रेवेन्यू है वो भी दिया हुआ है। अब इसको अगर आप इसके साथ डिवाइड करते हो देन यू विल गेट एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू देखो प्राइस ही है, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपको पता हो तो प्राइस हमने जो ली थी 10,9,876 ये वहीं आया है। सो प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर सेम। ओके, नाउ दो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे देखे हैं। द फर्स्ट वाज अबाउट द टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखा इट वाज अबाउट द एवरेज रेवेन्यू। नाउ वी हैव टू सी वन मोर कॉन्सेप्ट हियर and that concept is relating to the marginal revenue. Okay, once again चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको कहा था अगर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है ना तो कोई भी रिलेशन अगर पूछा जाता है यू विल बी एबल टू सॉल्व इट या यू विल बी एबल टू आंसर इट एक्चुअली, क्योंकि टेबल एंड कर्व ड्रॉ करना है। वो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप टेबल एंड कर्व ड्रॉ कर सकते हो एंड ऑन दैट बेसिस आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है इन योर ओन वर्ड्स। Okay, now let's start with the last concept. Two concepts we have done, total revenue and average revenue. And एक बात याद रखिएगा, price and average revenue are same. अब marginal revenue के बारे में। Marginal revenue is the addition made to the total revenue from the sale of an additional unit. ओके, एक एडिशनल यूनिट जब आप सेल करते हो
तो उससे जो आपको एडिशनल रेवेन्यू हुआ है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। वंस अगेन, मान लो आपने 5 कमोडिटीज सेल की हैं और आपको 60 रुपीज़ मिला है। 6th कमोडिटी सेल करते हो तो आपको 58 रुपीज़ मिलते हैं टोटल रेवेन्यू, देन 8 रुपीज़ इज द मार्जिनल रेवेन्यू। वंस अगेन देखिए, फॉर एग्जाम्पल है यहाँ, अगर आपने ओके जस्ट अ मिनट, व्हेन यू सेल 5 यूनिट्स यू गेट फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़, तो ये टोटल रेवेन्यू हुआ। 5 यूनिट्स बेच के आपको मिला है 50 रुपीज़। अब अगर आप 6th यूनिट सेल करते हो, जैसे 6th यूनिट, एंड इफ़ यू गेट 58 रुपीज़ टू रेवेन्यू, तो एक एडिशनल यूनिट जब आपने बेचा, एक एडिशनल यूनिट मतलब द 6th यूनिट, ये एडिशनल यूनिट आपने बेचा, तो एडिशनल कितना रेवेन्यू आपको अर्न हुआ है? 8 रुपीज़ एडिशनल अर्न हुए हैं। दैट 8 रुपीज़ एडिशनल जो अर्न हुए हैं ना, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, एंड दैट इज दिस सेंटेंस व्हाट सेज marginal revenue is the addition to the total revenue from the sale of an additional unit। एक additional unit जब आप सेल करते हो एंड आपको जो additional amount मिलता है that is marginal revenue। और आप लिख सकते हो marginal revenue is the additional revenue from the sale of an additional unit। एक एडिशनल यूनिट सेल किया है, उससे जो पैसा एडिशनल आया है, एडिशनल, that is marginal one। Or it can be also be derived as by using one formula, that is change in TR upon change in Q। ओके, आप मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एक फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हो। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q। ये फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हो, ये रही वो फॉर्मूला। एंड दूसरी फॉर्मूला ये है TRN माइनस TRN माइनस 1। तो ये अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था 58 माइनस 50, दैट इज़ दिस वन। ओके, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, स्पेशली ये फॉर्मूला जो है नेक्स्ट वन, सेकेंड वन जो अभी मैंने लिखा था, ये वाली फॉर्मूला, ये आपको कब यूज़ करना है? जब क्वांटिटी जो है वो सीक्वेंस में नहीं होती है तब की बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्मूला आप कब यूज़ कर सकते हो? व्हेन द यूनिट्स आर इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर एंड द यूनिट्स आर नॉट इन सीक्वेंस, देन यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। ओके, फिर से मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इट इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज सोल्ड। तो टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस आ जाएगा ना, एक एडिशनल यूनिट सेल करते हो तो टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस आ जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू इज। एंड मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए 2 फॉर्मूलाज हैं, एंड कौन सी फॉर्मूला कब यूज़ करनी है वो भी दिया हुआ है। जब यूनिट्स हैं वो सीक्वेंस में 1 by 1 होते हैं तो आपको द फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव टू यूज़, अदरवाइज द सेकेंड वन। नाउ अ टेबल इज गिवन, सी। ओके, इसमें है दोनों फॉर्मूला का यूज़ हो गया है, देखेंगे। ओके, यहाँ पे इट वुड बी वेरी क्लियर। सी, द क्वांटिटी सोल्ड इट इज़ 1 2 3 4 5, देन 8th वन, मतलब यहाँ सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, बाकी 1 2 3 4 5 ऑल सीक्वेंस में है। द प्राइस इज ऑल्सो गिवन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट टोटल रेवेन्यू। ओके, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, वी गेट टोटल रेवेन्यू। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो यहाँ 10 का 10 ही लिखेंगे, देन 18 माइनस 10 8 24, मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज अभी जो यूनिट्स हैं वो सीक्वेंस में ही है, इसमें कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, सो हम सिर्फ माइनस ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 18 माइनस 10, 24 माइनस 18, 28 माइनस 24, 28 30 माइनस 28, तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे हम वो फॉर्मूला सेम यूज़ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गो फॉर 40 माइनस 30 करके यहाँ हम 10 लिख लें, नो, दैट विल बी इनकरेक्ट आंसर। एज यहाँ कॉन्सिक्वेंस है वो ब्रेक हुआ है, जो सीक्वेंस है वो ब्रेक हुआ है, सो हम यूज़ करेंगे ये वाली फॉर्मूला। देखिए, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q। तो चेंज इन TR कितना हुआ है? 10, 40 से 30 हुआ, सो 10 हुआ।
एंड यहाँ पे Q में 3, सो द आंसर इज 3.3. ओके, सो दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू में चेंज जो आया है दैट इज 3.3. Okay, so three terms we have seen here: total revenue, average revenue and marginal revenue के बारे में हमने डिस्कस किया. Okay, what we have seen today everyone. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा रेवेन्यू के बारे में. मतलब रेवेन्यू किसे कहते हैं? रेवेन्यू मतलब द सेल्स प्रोसीड्स या रिसीट्स ऑफ द फर्म. ओके, या प्रोडक्शन है जो सेल हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, दैट वी हैव सीन रेवेन्यू के इंट्रोडक्शन में. फिर एक एग्जांपल भी हमने देखा था कि अगर 1000 टेबल्स अगर कोई बेचता है से एंड 20,000 रुपीज़ ही इज़ गेटिंग फ्रॉम दैट, देन दैट 20,000 रुपीज़ इज़ द रेवेन्यू फॉर दैट पर्सन. देन वी मूव टू द कॉन्सेप्ट्स और आस्पेक्ट्स. ये आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स को आस्पेक्ट्स भी कहते हैं. आस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू, 3 एस्पेक्ट्स के बारे में आज हमने देखा. टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. ओके, that's the formula here. Okay, let's see the formulas all together here. टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा हमें? इट इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. दिस इज फर्स्ट वन. देन द नेक्स्ट वन था एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू कैसे मिलेगा? इट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू. ओके, एंड द थर्ड जो अभी हमने देखा दैट वाज अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू. एंड मार्जिनल रेवेन्यू के लिए 2 फॉर्मूलाज हैं. मार्जिनल रेवेन्यू के लिए 2 फॉर्मूलाज हैं, दैट इज टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1. एक ये, दूसरा चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q. ये 2 फॉर्मूलाज हैं. ओके, सो दिस इज द टॉपिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में. ओके एवरीवन, सो लेट्स कीप अप टू हियर कॉन्सेप्ट्स तक, एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशंस in different markets. Okay, so till then take care, bye and thank you and have a nice day. Still इससे related अगर कोई भी doubt है then that thing we will be solving in our live sessions. Okay, bye everyone.